میر کلام صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور میں اسپیشلی ہمارے سینئر اور ایکسپیرینس پارلیمنٹرین نگد بی بی کا میں انتہائی مشکور ہوں. پورے مرج ڈسٹرکٹ کے عوام کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ تحریک التوا جمع کیا اور یہ بیس کے لیے بھی منظور ہوا. تو جناب اسپیکر، بات یہ ہے کہ قبائلی علاقے کے ساتھ جو بھی ایسے دن آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تاریخ گواہ ہے ان باتوں پہ کہ جب بھی انڈیا سے خطرہ ہوا ہے یا مطلب ایسے حالات حکومت نے یا ہمارے اداروں نے پیدا کیے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 1 کروڑ سے زیادہ قبائل ہے جو اسلحہ لے کے وہ بالکل جنگ کے لیے تیار ہے. لیکن جناب اسپیکر، جب وہ وسائل کی وہ باری آتی ہے تو قبائل کا وہ آبادی بالکل آدھی میں تقسیم ہوتی ہے. جناب اسپیکر، اس کا میں ایک مثال دوں گا کہ جب بھی جون 2014 میں شمالی وزیرستان میں ضرب عضب کا آپریشن شروع ہوا تو اس کے اعداد و شمار کے مطابق 16 لاکھ بندے وزیرستان سے باہر نکلے تھے. ان کو ہمارے ایف ڈی ایم اے یا پی ڈی ایم اے کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ ہم نے اس کو کمپنسیٹ کیا ہے. دوسری طرف مزے کی بات یہ ہے جناب اسپیکر کہ اب سینسز ہو گئے تو پورے نارتھ وزیرستان کا 5.5 لاکھ کی آبادی بتائی گئی ہے. جب ہم ضرب عضب آپریشن 2014 میں نارتھ وزیرستان سے نکل رہے تھے، اس میں تحصیل رزمک، تحصیل گاڑیوم، تحصیل دوسلی، تحصیل شوا، یہ تحصیل نکلے ہی نہیں تھے اور داتاخیل تحصیل کے لوگ افغانستان چلے گئے تھے. تو ان 2-3 تحصیلوں کے لوگ 16 لاکھ کی تھے. اب جب وہ پورے کے پورے نارتھ وزیرستان کی سینسز ہوئی تو 5.5 لاکھ ہو گئی. تو جناب اسپیکر، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے یہ ڈیٹا اس درمیان میں کس نے اس سے نکالا ہے، یا اس میں پیج غائب ہو گئے یا اس میں بارش ہو گئی ہے کہ اس سے وہ مٹ گئی ہے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے. ہم آج تک اس بات کو نہیں سمجھ پا سکے. دوسری بات جناب اسپیکر، مرجر کے وقت پورے قبائلی علاقے کے ساتھ وعدہ ہوا تھا کہ ہر سال اس کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہوتا ہے ADP وہ اپنی جگہ پہ ہوگا. اس کے علاوہ ہر سال 10 سالوں تک 100 ارب روپے اس کو دیں گے. تو جناب اسپیکر، وہ 100 ارب روپے کہاں پہ گئے؟ ہم نے تو آج کے دن تک وہ نہیں دیکھے. آج بھی واقع ہمارے بہنیں، ہمارے مائیں 2-3 کلومیٹر دور سے سروں پہ پانی لاتے ہیں. جناب اسپیکر، آج بھی ہمارے ہاں ٹائپ ڈی اسپتال موجود ہے لیکن اس میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. آج بھی ایجوکیشن کی یہ صورتحال ہے جناب اسپیکر کہ سینکڑوں سکول آج بھی بند ہے. پہلے سال 9 ارب روپے لگائے گئے، وہ بھی آپ کی VIPs کی مومنٹ پر خرچ ہوئی تھی تقریباً. دوسری سال 17 ارب روپے. اس سال کا خدا ہی جانے کہ کیا ہوگا. تو جناب اسپیکر، وہ جو وعدے ہوئے تھے لوگوں کو وہ مکمل کرنا چاہیے حکومت کو. تیسری بات یہ کہ IDPs کی بحالی. افغانستان میں حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 6000 سے زائد خاندان رہتے، لیکن ہماری اعداد و شمار کے مطابق 15000 سے زائد لوگ افغانستان میں رہ رہے ہیں. تو جناب اسپیکر، ہم جب IDPs کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں جواب ملتا ہے کہ نہیں، اس کا علاقہ کلیئر نہیں ہے. ایک تو اپنی جگہ یہ کویسچن ہے کہ یہ علاقہ آج کے دن تک کیوں کلیئر نہیں ہوا؟ 7 سال ہو گئے اس کے. وہ بھی بالکل اتنا چھوٹا سا ٹکڑا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ تحصیل داتا خیل اور تحصیل شوال کا جو علاقہ رہ گیا ہے. پھر بھی ٹھیک ہے کہ وہ کلیئر نہیں ہے، وہاں پہ مسئلے ہوں گے، ہم مانتے ہیں اس کو. لیکن جناب اسپیکر، جو افغانستان میں رہ رہے ہیں ان کو یہ اجازت تو دی جائے کہ وہ خیبر پختونخوا میں تو آ جائے. اس کو باقا خیل جیسے کیمپ یہاں پہ بنائے، اس کو اجازت دی جائے یہاں پہ. جناب اسپیکر،
जनाब स्पीकर, कश्मीर में 72 घंटे की कर्फ्यू लगाई गई थी। पूरे के पूरे मुल्क, हमारे वजीर आजम साहब से लेकर हम सब तक ये शोर मचा रहे थे कि वह इंसानियत को खिलाफ वर्जी हो रही है, लोगों के ज्यादती हो रही है। जनाब स्पीकर, हम किसी के साथ तासुब नहीं करते। दुनिया में जहाँ पे किसी मजहब से, किसी रंग का, किसी फिरके का बंदा हो, जिसको तकलीफ हो, हम इंसानियत की बुनियाद पर उसकी मुश्किलात को देखते हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, अफसोस की बात यह है कि शुमाली वजीरिस्तान के कुछ ऐसे इलाके आज के दिन तक है जो उसको तहसील दाखिल के काजामा दाखिल, माइजरमा दाखिल, तहसील शवाल, इस पर जनाब स्पीकर हैरानगी की बात है, इसमें 52,707 घंटे हो गए कि कर्फ्यू है वहां पे। 52,760 घंटे आज के दिन तक उन जगहों पे कर्फ्यू है जनाब स्पीकर। तो अफसोस हमें भी आती है और गिला हमें रियासत से आती है कि हम कश्मीर का रोना तो रोते हैं, हम फलस्तीन का रोना तो रोते हैं, लेकिन वजीरिस्तान में 52,707 घंटे एक जगह पे कर्फ्यू है, उन लोगों का हम नहीं पूछते आज के दिन तक। जनाब स्पीकर, पूरे कबायली इलाके में यहाँ पे मैंने मुस्तकम मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट के हवाले से एक करारदाद भी पास किया। मैं पूरे के पूरे अवान का शुक्रगुजार हो के यूनानी मसले उसको पास किया। लेकिन जनाब स्पीकर, आज के दिन तक हमारे इलाकों में मोबाइल नेटवर्क तक मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ कोविड-19 की वजह से आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो हमारे स्टूडेंट्स नेट से तो इतने दूर है कि वहां पे नेटवर्क नहीं है। जनाब स्पीकर, एक स्टूडेंट जिसका ताल्लुक रजमक के शाखीमार गांव से हो, उसके साथ बिल्कुल सादा मोबाइल की नेटवर्क नहीं है। गाड़ियों में उस बंदों के साथ सादा मोबाइल नेटवर्क नहीं है। दाताखेल में लोगों के साथ नेटवर्क नहीं है। जनाब स्पीकर, हमारे लोग खलीज ममालिक में, अरब ममालिक में मजदूरी के लिए जाते हैं, तो उनका 3-3, 4-4 साल होते हैं कि अपने घर से उनका राब्ता नहीं होता। फिर बदकिस्मती ये है जनाब स्पीकर, अगर इसको देखा जाए कि वहां पे टावर्स भी लगाए गए हैं, कई जगहों पे गाड़ियों में भी लगाया गया है, परियाट में भी लगाया गया है, दाता खेल खड़कामर इन इलाकों में लगाए गए, लेकिन जनाब स्पीकर दूसरा साल शुरू है कि उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसको चालू नहीं कर रहे। तो जनाब स्पीकर, वहाँ के लोगों के कम्युनिकेशन के इंतहाई मसले, इसको संजीदगी से लेना होगा। ये ऐसे बातें नहीं है कि हम यहाँ पे खड़े होके हम बस तकरीर करके ये खत्म कर ले। जनाब स्पीकर, इस जगह से जिम्मेवार फोरम दूसरी जगह पे हमें नहीं मिलता। जनाब स्पीकर, मेरी आपसे तवक्को है कि इन सब बातों पर आप संजीदगी से गौर कर लेंगे। जनाब स्पीकर, इस दहशतगर्दी के नाम नहाद जंगों में हमारे मार्केट, हमारे घर, हमारे बाजार, हमारे मसाजिद, हमारे स्कूल, हमारा अस्पताल सब कुछ तबाह हो गए। फिर हुकूमत की कंपनसेशन का तरीकाकार क्या है? कंपनसेशन का तरीकाकार यह है कि अगर आपका घर फुली डैमेज है तो उसको 4 लाख रुपए देते हैं, अगर पार्शली डैमेज है तो उसको 1,60,000 रुपए देते। जनाब स्पीकर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 4 लाख रुपए पे इस महंगाई में एक बाथरूम भी बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो जो हमारे लोगों ने कराची में, अरब ममालिक में मजदूरियां की थी, उस पर बड़े बड़े घर बनाए थे, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए के, उसके उम्र भर की सरमाया लगाई गई थी, उनको आपने डिमोलिश कर दिया और आप 4 लाख रुपए देते हैं। वो भी किस तरीके से? इस तरीके से कि 4 लाख में से जो सर्वे के टीम आते हैं 2 लाख उनको देंगे और 2 लाख घर वालों को देंगे। बाजारों के मुआवजे आज के दिन तक बाकी है जनाब स्पीकर, जिसमें हमारे मीरान शाह बाजार के मुआवजे आज के दिन तक लोगों को नहीं मिले। दाताखेल बाजार है, देगान बाजार, गुलाम खान बाजार, और इसके साथ साथ बार्गेन एसोसिएशन, जो हजारों गाड़ियां वहां पे हमने छोड़ के
उस इलाके को हमने एक ही लोग थे जो उसके लिए हमने छोड़ा था। वहां से किसने लिए उस गाड़ियों को, किसने जलाया हमारे उन गाड़ियों को? जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है ऐसे बातों पर, लेकिन हमारी मजबूरी हम करेंगे कि जनाब स्पीकर हमारे घरों से बिस्तर की चोरी हुई है, हमारे घरों से प्लेट्स और थर्मास की चोरी भी हुई है। जनाब स्पीकर, हमारे घरों के, हमारे मार्केटों के टी आयरन और गार्डर्स वो ट्रकों में लेके लाहौर चले गए। जनाब स्पीकर, खाम माल के तर्ज पर वो लोगों ने फरोख्त किया हमारे इलाके को। जनाब स्पीकर, वजीरिस्तान को किसी ने हमें ज़कात में नहीं दिया है, न किसी ने हमें खैरात में कबाइली इलाका दिया है। ये पाकिस्तान नहीं था जनाब स्पीकर के ये कबाइली इलाका यहाँ पे मौजूद था। जनाब स्पीकर, अगर इस तरह के रवैये होते, अगर इस तरह के तरीक़ाकार होते हैं मुल्क में, मैं इंतहाई आजिज़ाना रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब स्पीकर, इंतहाई आजिज़ाना रिक्वेस्ट हो, मैं हुकूमत से भी, मैं रियासत से भी इंतहाई आजिज़ाना रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब स्पीकर, जो हमारे लिए आवाज बुलंद करते या जो हमारे कबाइली इलाके के हक की बात करते हैं, तो जनाब स्पीकर, अली वजीर कराची के जेल में होगा, उसके साथ शेरायूब, बसीर मसूद, हसन खान, नूरुल्लाह तारीन, वो कराची के जेल में पड़े। उसने सिर्फ ये इस नाम ने हाथ दहशतगर्दी की जंग से छुटकारा पाने की बात की है। अवैस अब्दाल चमन के जेल में पड़ा है, अनीफ पश्तीन फ़हीम वजीर बनु के जेल में पड़े। जनाब स्पीकर, डॉक्टर सदालम मसूद जो कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था, आज BBA के लिए ODI खान गया था। इंतहाई शर्म की बात है जनाब स्पीकर, 66-67 उसकी एज है और वो एक सर्जन डॉक्टर है, उसको आज फिर गिरफ्तार कर लिया है। तो जनाब स्पीकर, अगर हम आपको कह दे, अगर हम आपको रिक्वेस्ट कर दे, अपोजिशन के सारे बंदे आपसे रिक्वेस्ट कर दे कि सिंध के हुकूमत ने अली वजीर पर एक FIR किया था, उसने आपको एक लेटर भेजा, उस लेटर के तबादले में आपने अली वजीर को गिरफ्तार करके उनके हवाले कर दिया। अगर जनाब स्पीकर हम आपसे पूछ ले या आपसे रिक्वेस्ट कर ले कि राव अनवर जो कराची में 444 पश्तूनों के कातिल है, 444 बंदों को कातिल किया है और उस पर हुकूमती GIT ने साबित किया है, तो जनाब स्पीकर, क्या आप उसको पकड़ के ला सकते हो? यहाँ पे नहीं ला सकते जनाब स्पीकर। सिंध की पुलिस को जब भी मसला बना तो उसने सारे के सारे ने छुट्टी के दरखास्त दिए। तो मैं यहाँ आप एजेंडे पे वाइंड अप करें जी। थैंक यू जनाब स्पीकर, मैं वाइंड अप कर लेता हूँ आखिरी जुमले। अगर KP पुलिस ने उसी दिन जब ताहिर दावड़ का वाकया हुआ, तो जनाब स्पीकर, अगर उसी दिन इस पुलिस ने गैरत थोड़ी सी दिखाई होती तो आज के दिन तक ये हालात न होते। तो जनाब स्पीकर, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि मुझे ज्यादा टाइम दिया गया, लेकिन जनाब स्पीकर, बिल्कुल आखिर में मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं इंतहाई गरीब बंदा हूँ जनाब स्पीकर, इस पूरे ऐवान में बैठे हुए लोगों से माली हैसियत भी मेरी कम है, एज भी मेरी कम है जनाब स्पीकर, एक पसमानदा इलाके से मेरे ताल्लुक है। लेकिन जनाब स्पीकर, एक बात मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि हमारे रियासती इदारे ये बात सुन ले कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो जनाब स्पीकर, इस दुनिया में कितने ममालिक थे? जब पाकिस्तान बन रहा था उसी टाइम कितने मुल्क थे? और जनाब स्पीकर, आज इस दुनिया में कितने मुल्क है? मुल्क जनाब स्पीकर आसमान से नहीं गिरते, मुल्क के महरूमियों की वजह से लोगों के दरमियान में बदएतमादी पैदा हो के वहाँ पे उनके बच्चे। आप एजेंडे पे आए। थैंक यू जनाब स्पीकर। थैंक यू अहमद कुंडी साहब।